Welcome back, students. Welcome to the today's class. So today we will discuss that volume occupied by a gas depend upon three factors. Those three factors are number of moles of the gas, temperature at which the gas is there, and pressure of the gas. Generally, what happens, as the number of moles of gas increases, volume occupied by it will increases. Similarly, if temperature increases, volume increases. Generally, what happens, when pressure increases, volume decreases if number of moles and temperature remains constant. Okay, so we will take a general observation of the various gases law that may come into appear into for the basic understanding of the chemistry. Okay, so first we will take into account Boyle's law. Boyle's law states that at constant temperature for a given mass of gas, volume of the gas is directly proportional to volume of the gas is inversely proportional to the pressure of the gas. Now here you have to take into account that temperature is constant and mass of gas is also constant. So you can easily say that now volume inverse to 1 by P, if what happens, number of amount is constant and T both are constant. Both are what? Constant. Here N means mass of the gas, also number of moles. So V is equal to K by P. So PV equal to K, that is constant. Are you sure about that? So PV is equal to constant means the value of K depends upon value of N and T. Okay, so it gives rise to P1 V1 equal to P2 V2, that is called Boyle's law, and that is applicable when mass of the gas taken is constant and T both are what? Both are constant. P1 V1 equal to P2 V2. Next is regarding, that is called as Charles law. What is Charles law? States that at constant pressure, volume of the gas is directly proportional to temperature if mass of the gas is also taken constant. So here you can see that volume proportional to T, so V is equal to K dash T. So you can say V by T is equal to K dash if mass of the gas constant and pressure is constant. Okay, so it gives rise to V1 by T1 equal to V2 by T2. The original definition is what? The original definition of the law is that for a given mass of gas, I am writing the original, we will discuss that original definition when we will discuss gases law. Okay, original definition we will discuss in gases. So what is the original definition? Original definition is that volume of the gas is directly proportional to the temperature. Okay, that can be defined in originalities like that. For a given mass of gas, the volume of the gas increases or decreases by a factor of 1 by 273 with each degree rise or fall in temperature.
Okay, that is the original definition of Charles' law, but we will discuss that original definition in gaseous state. Here, for the time being, you have to understand only the basic fundamental, that volume is directly proportional to the temperature. Okay, that volume directly proportional to temperature. Are you sure? So till now we have discussed two things. What is that? That P1 V1 is equal to P2 V2 if temperature constant, number of moles are constant. V1 by T1 is equal to V2 by T2 if number of moles are constant and pressure is constant. Okay, this is called as Boyle's law, this is called as Charles' law. Okay, now we will go forward. Gay-Lussac law. What is that? Gay-Lussac law. So what is Gay-Lussac law? States that Gay-Lussac law states that at constant volume, the pressure of the gas is what? Directly proportional to temperature if mass of the gas is also constant. Mass of the gas is constant also. Okay, so what is the that at constant volume pressure is directly proportional to what? Temperature. So it comes out to what? P directly proportional to T. So P by T is equal to K double dash, given that n number of moles is constant and what? And V is constant. So answer will be P1 T1 equal to P2 T2. So that is Gay-Lussac law. Next is equation of state. What is that equation of state? What is that equation of state? That for a given gas, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. The left hand side is called as STP condition, that is standard temperature pressure condition, and second is what? Given set of condition. Okay, so by comparing these two things we can determine what? We can determine the volume at STP to the volume of the gas at given condition. Are you sure about that? So these 2-3 things are very, very important to us. The next thing is about Avogadro hypothesis. Avogadro hypothesis. What that hypothesis states? It states that at constant temperature and pressure, equal volume of all the gases contains equal moles. That volume proportional to number of moles. So these are the 2-3 things you have to understand. Okay. Next is that an ideal gas is that gas which strictly follows Boyle's law, Charles' law. Okay, are you sure? Second thing, this is the first category. Second is that in case of ideal gases or gas, intermolecular attractions
do not exist. So you can say that ideal gas can never be liquefied. Ideal gas can never become liquid, can never become liquid. All the real gases, they can become liquid. They can become liquid under critical conditions, okay? But an ideal gas can never be liquefied. So you can easily say that in case of ideal gases, there is no intermolecular attraction. Okay, sure about that? So these are simple facts you have to understand. Next thing is that this equation is known as ideal gas equation. So you can use this equation or this equation. So the result in most of the cases are same only, okay? These two things are very popular. So this is a very basic idea about the gases. Remember that different gases may have different molar masses, but all the gases, they have the same molar volume. They have the same molar volume. They have the same molar volume. You understand that or not? Very nice. Now, the next point is very important, that is called as limiting region. Now, limiting region concept is very important concept, and most of the question will revolve around this concept. The component in a given reaction that get exhausted while the other reactants are still present. Okay? इसका मतलब क्या हुआ, एक रिएक्शन के अंदर मान लीजिए ए और बी में रिएक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए ए खत्म हो गया है, बी अभी भी प्रेजेंट है, तो जो बी खत्म हो गया है वो क्या है, ठीक है, जो खत्म हो गया है वो है आपके पास क्या, लिमिटिंग रीजन. मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ एक बार ये बात कि जैसे आपके मम्मी हैं घर पे, आप जो गैस का जो बर्नर है उस पर खाना बनाते हैं, तो जो गैस का सिलेंडर है उसमें उसको बोलते हैं एलपीजी सिलेंडर. तो एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, उसके अंदर आपका मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिक्सचर होता है. तो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर बर्न की तरफ जाता है और बर्नर पर ये तीनों गैसेस बर्न करती हैं और फ्लेम प्रोड्यूस होती है. तो एक दिन ऐसा होता है कि वो जो मम्मी आपकी बोलती हैं कि बर्नर नहीं जल रहा, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जो सिलेंडर है उसमें से गैस खत्म हो गई, क्योंकि एयर तो प्रेजेंट है ऑल अराउंड. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके घर में जो गैस चूल्हा जलता है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे अंडरगो कंबशन इन presence ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाइड बाय द एयर. नाउ इफ somehow burner is not catching fire or there is no flame in the burner, it means the gas inside the cylinder get exhausted. It means hydrocarbon mixture is present in limited amount while the oxygen in the air is unlimited. Are you sure about that? So this is the concept of limiting region. So how will you find out the limiting region in a given reaction? So there is a procedure to that. So now we will learn the procedure to find out the limiting region. देखिए, अब हमें पता लगाना है कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स किसी भी रिएक्शन के अंदर हम क्या निकालेंगे, स्टोइकोमेट्रिक मोल्स निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे हम उसमें से फिर लिमिटिंग रीजन. तो पहले क्या कीजिए आप, पहले आप लिखिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिखा जाए कि हर चीज़ वेल बैलेंस्ड हो, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में हो. अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस्ड कीजिए. फिर आपको रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा होगा, भाई 10 ग्राम ए है, 20 ग्राम बी है, 15 ग्राम ए है, 20 ग्राम बी है, 5 ग्राम ए है, 4 ग्राम बी है, कुछ ना कुछ दे रखा होगा. तो वो जो गिवन अमाउंट ऑफ ए एंड बी है, गिवन अमाउंट ऑफ ए एंड बी है, उससे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लीजिए. ठीक है ना. गिवन अमाउंट से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए. बी कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी. फिर क्या करेंगे आप,
स्टोइकोमेट्रिक मोल्स निकालेंगे उन्हें। कैसे? जो Na के मोल्स हैं, जो क्या है Na के मोल्स हैं, उसको क्या करेंगे आप, Na के मोल को आप x से डिवाइड करेंगे और B के मोल्स को आप y से डिवाइड करेंगे। चेक कीजिए, ये इसके बैलेंस्ड मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को आप क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को आप B से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। एक आंसर किससे आएगा, एक आंसर Na/x से आएगा, दूसरा आंसर आपका NB/y से आएगा। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू लेसर है, जिसकी वैल्यू क्या है, लेसर है, उसको क्या मानेंगे हम, लिमिटिंग रीजन। क्या मानेंगे, लिमिटिंग रीजन मानेंगे। और फिर हम चेक करेंगे, अगर A और B दोनों सेम है तो दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसको दोबारा से आप आराम से चेक कीजिए, ध्यान से चेक करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। इसको स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से चेक करते जाइए। ओके, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास, आपके पास यहाँ से आ गया। श्योर अबाउट दैट? हाँ जी, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए 1 मोल मीथेन है, इसका 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया गया है, तो 1 मोल CO2 है प्लस 2 मोल ऑफ H2 है लिक्विड स्टेट में। ये सारी गैसियस स्टेट हैं और ये वाटर है लिक्विड स्टेट में। अब चेक कीजिए, पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। वो कह रहा है जो 24 ग्राम मीथेन है वो 40 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है। बताइए इसमें से लिमिट रीजेंट कौन सा है। सेकंड, कितना अमाउंट CO2 का प्रोड्यूस हुआ है। ये दो क्वेश्चन आपके पास। तो 24 ग्राम मीथेन है और क्या है, 40 ग्राम ऑक्सीजन है। तो जैसा कि हमने प्रोसीजर आपको बताया, आपने वैसे ही प्रोसीजर लिखना है। अब पहले चेक कीजिए क्या दी हुई इक्वेशन बैलेंस्ड है। बिल्कुल सही बैलेंस्ड है, तो कुछ नहीं करना। आर यू श्योर? ओके, देखिए क्या निकालेंगे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, कितना आ गया 1.5। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा वो 40/32, तो ये 1.25 आ गया। ओके, फिर हम निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ मीथेन। जितने मोल्स मीथेन के आए हैं उसको उसके बैलेंस्ड मोल से डिवाइड कीजिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है इक्वेशन में, आप चेक कर लीजिए। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1.5। फिर आप क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ O2। आंसर है कितना है आपके पास 1.25 डिवाइड बाय 2 क्या है यहाँ पे, चेक कीजिए बैलेंस का नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ से आंसर आ गया 0.625। आप चेक कीजिए स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ जो आपके पास मीथेन के हैं वो 1.5 है, जो ग्रेटर है किससे, स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन के, जो कितने हैं 0.625। तो जिसके स्टोइकोमेट्रिक मोल्स लेस होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रीजेंट। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजेंट। कि कितना रीजेंट जो पहले ख़त्म हो गया और बाकी बचा हुआ है, ठीक है, किसका, दूसरे रिएक्टेंट का। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? जब ये हो जाए तो फिर आपने स्टोइकोमेट्रिक मोल्स को भूल जाना है। अब आपने जो भी आंसर निकालना है वो एक्चुअल मोल से निकालना है। स्टोइकोमेट्रिक मोल्स का काम एक ही है, वो क्या है, लिमिटिंग रीजेंट निकालना। एक बार लिमिटिंग रीजेंट मिल जाए तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी पर आप वापस आ जाइए। क्या है वो 1.5, कौन कौन से हैं वो 1.5 और 1.25। ओके, श्योर? तो एक है 1.5, दूसरे हैं 1.25। अब देखिए ध्यान से, अगर आप मीथेन का 1 मोल था, ऑक्सीजन के 2 मोल थे और CO2 का 1 मोल था और वाटर के 2 मोल थे, तो हमें मालूम पड़ेगा ऑक्सीजन लिमिटिंग है। तो अब बैलेंस इक्वेशन चेक कीजिए कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई। तो आप बोलेंगे 1 मोल। अब जो आंसर निकालना है वो निकालना है लिमिटिंग रीजेंट से।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, ठीक है नहीं? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो अब चेक कीजिए क्या आंसर आ रहा है। आंसर ये आ रहा है कि जो 2 moles O2 है, इट इज प्रोवाइडिंग यू 1 mole ऑफ CO2। अब क्वेश्चन में इतनी है, क्वेश्चन में है 1.25 moles ऑफ O2। तो हमने कितना अमाउंट CO2 का प्रोड्यूस हुआ। तो इसको आप, ठीक है, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए कि ये आपका अमाउंट जो है, ये अमाउंट m है, कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ। या मान लीजिए ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट आपका z अमाउंट है। क्या है ये? z अमाउंट है। तो यहाँ से z की वैल्यू इतनी आ जाएगी 1.25 क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 0.625। तो इतने मोल क्या प्रोड्यूस हुआ? तो आंसर है CO2। कितना हुआ ये? CO2 प्रोड्यूस हुआ। कितना प्रोड्यूस हुआ ये? CO2 प्रोड्यूस हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा 0.625 मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ, तो कितना CO2 है ये? आप 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास जो आंसर आया था, कितना आया था ये? आप चेक कीजिए दोबारा से। हमारे पास आंसर है 0.625 मोल। तो ये जो 0.625 मोल है, ये क्या है? ये है मोल ऑफ CO2। मोल कितना है ये? CO2 का। तो आपने CO2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया 44, तो हमारा ये आंसर इसमें आ गया अमाउंट में, मास में। अब यही जो क्वेश्चन है, यही जो आंसर है, अगर आपसे पूछा जाएगा किसमें, पूछा जाएगा वॉल्यूम में, तो चेक कीजिए वॉल्यूम किसमें पूछा गया है। STP पर पूछा गया है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 298 पूछा गया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आर यू श्योर अबाउट दैट कि मास में आंसर पूछा गया है कि वॉल्यूम में पूछा गया है? पार्टिकल में पूछा गया है तो भी आंसर मिलेगा। पार्टिकल की वैल्यू क्या आएगी? पार्टिकल की वैल्यू आएगी 6.625 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? इतने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स क्या होंगे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी? दैट इज टू इजी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कौन सा है कि आपको गिवन है 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 टू गिव्स यू 2 अमोनिया। ये अज्यूम्ड किया गया है दैट रिएक्शन इज ऑकरिंग ओनली इन वन डायरेक्शन। जनरली जो अमोनिया का रिएक्शन होता है बोथ द डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने ले लिया वन डायरेक्शन में। तो आपको बताना है कि 100 ग्राम जो N2 है वो 100 ग्राम ही H2 से रिएक्ट किया है एट T केल्विन। तो बताइए अमोनिया का कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है, और बताइए जो अनकंज्यूम्ड अमाउंट है। यहाँ तो दोनों में से एक चीज़ क्या रहेगी? अनकंज्यूम्ड, आइदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कौन सा जो अमाउंट है वो अनकंज्यूम्ड है। क्या बेटे? वो अनकंज्यूम्ड है और कितना है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? देखिए इसमें कैसे करेंगे आप, पहले आप इक्वेशन को लिखिए। ये बैलेंस इक्वेशन है तो आंसर है यस, ये बैलेंस इक्वेशन है। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालिए, निकल के 3.571। फिर आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकलिए 50। फिर निकालिए स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ N2। तो जो स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ N2 है वो कितना निकला है? वो निकला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स इन दी बैलेंस इक्वेशन, जो 1 है यहाँ पे। कितना है यहाँ पे? 1 है। क्लियर? तो 1 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 3.571। दूसरे केस में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए हैं यहाँ पे? 100/2 50। तो कितने मोल्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर हैं 3 मोल हैं, चेक कीजिए इक्वेशन में। तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या है? स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ H2 कितने निकले? 16.66। तो किसके स्टोइकोमेट्रिक मोल्स कम निकल रहे हैं? आंसर है N2 के। तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रीजन। क्या आ गया? ये आए लिमिटिंग रीजन आ गया। लिमिटिंग रीजन ऑफ N2 इज 3.571। अब आपके सामने क्या आएगा कि 1 ग्राम जो नाइट्रोजन है, 1 ग्राम जो नाइट्रोजन है, इट गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ व्हाट? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। जो एक मोल नाइट्रोजन है आपको 2 मोल अमोनिया देता है। तो जो 3 पॉइंट क्या है? जो 3.57 नाइट्रोजन है, कितने अमाउंट आपको क्या देगा? अमोनिया का। तो इसको x मान लीजिए आप। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2 इंटू 3.571, आंसर आ गया 241.7। इतने मोल क्या प्रोड्यूस हुआ, इतने मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। तो ये कितना हो गया 7.142 इंटू 17 ग्राम, क्योंकि मोलर मास कितना होता है अमोनिया का 17, 14 + 3 व्हाट इज दैट, दैट इज दी 17। द आंसर कम्स आउट टू बी 121.414 ग्राम, दैट इज द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ अमोनिया दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके क्लियर। क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कितना अमाउंट क्या है अनरिएक्टेड है, कितना। अब देखिए दोबारा से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोबारा से, कि दैट N2 3H2 गिव्स यू 2 अमोनिया, लिख लिया आपने। तो अब हमें निकालना है अनकंज्यूम्ड। अब देखो नाइट्रोजन अगर लिमिटिंग रीजन है तो हाइड्रोजन क्या रहेगा, अनकंज्यूम्ड। कितना रहेगा चेक करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स जो हाइड्रोजन के हैं वो हैं 50 और नाइट्रोजन कितने थे, आंसर था 3.571। अब देखिए वन मोल जो N2 है ये कंज्यूम करता है 3 मोल्स ऑफ H2। तो जो 3.571 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होगा वो क्या करेगा, y मोल ऑफ H2 कंज्यूम करेगा। क्लियर। तो उससे आपका आंसर क्या आएगा, तो y के लिए नहीं आएगी, y के लिए होगी 10.713 मोल्स ऑफ H2। तो H2 कितना मोल कंज्यूम हुआ, 10.713 मोल्स। तो अनकंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ H2 क्या होगा, अनकंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ H2 होगा कितने मोल्स आपने लिया है माइनस कितने मोल कंज्यूम हुआ है, कितने मोल क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है। तो कंज्यूम होने पे आपका जो आंसर आया वो क्या है 39 पॉइंट, कितना आंसर आ गया बेटे यहाँ पे 287 मोल्स। इतना मोल्स क्या है H2 का अनकंज्यूम्ड है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 2 से, तो ये 14 हो गया और ये 7 हो गया और ये 5 हो गया और ये आपके पास 78 हो गया। इतना जो ग्राम H2 है वो क्या है यहाँ पर अनकंज्यूम्ड है। क्या बेटे यहाँ पर अनकंज्यूम्ड है। इजीली अंडरस्टूड, वेरी इजीली अंडरस्टूड। श्योर अबाउट दैट ना बेटे, वेरी गुड। लेट सपोज एक नया रिएक्शन हुआ कि 100 ग्राम हमारे पास मान लीजिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इट रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ HCl। तो बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ। देखिए क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन यहाँ पे आया कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ है विद HCl, तो प्रोड्यूस हुआ है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, वाटर लिक्विड और CO2। तो मान लीजिए रिएक्शन किस में हुआ, रिएक्शन हुआ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 100 ग्राम HCl में। तो बताइए कितना अमाउंट CaCl2 का प्रोड्यूस हुआ। तो पहले करेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल लीजिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लीजिए। क्लियर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास भी 100 होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, मिलाकर कितना आंसर आ गया, आंसर इतना आ गया आपके पास, आंसर विल बी 100। ओके। तो आपके पास 100/100 आ गया। HCl मोलर मास 36.5, आंसर आ गया 2.797। अब क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे इसका स्टोइकोमेट्रिक मोल्स। तो निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स 1 भी है और बैलेंस में भी 1 है, तो आंसर 1 आ गया। स्टोइकोमेट्रिक मोल्स ऑफ HCl कितना आ गया हमारे पास, तो आंसर है 2 पॉइंट, आपके पास आंसर क्या था 2.7397, 7397 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 1.3898। क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। तो अब ये जो स्टोइकोमेट्रिक मोल्स जैसा कम आ रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का तो लिमिटिंग यूनिट क्या होगा, जिसके स्टोइकोमेट्रिक मोल्स कम होंगे वो क्या होगा, वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कितना CaCl2 प्रोड्यूस हुआ। तो बहुत आसान है यहाँ पे,
तो जो आंसर इतना आ रहा है 1 मोल ऑफ CaCl2 क्या प्रोड्यूस करता है, तो इतना ही तो लिमिटिंग नीड है यहाँ पे। CaCl2 गिवन बाय व्हाट 1 मोल ऑफ CaCO3। तो चेक कीजिए आपका अमाउंट भी 1 मोल है और प्रोड्यूस ही 1 मोल हुआ है, तो 1 मोल का आंसर कितना हो जाएगा 111 ग्राम। अब चेक कीजिए बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CaCl2, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स भी 1 ही गिवन है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 1 मोल ऑफ CaCl2 गिवन बाय 1 मोल ऑफ CaCO3, सो आंसर इज 111 ग्राम। श्योर अबाउट दैट, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। अब देखिए पूछा तो नहीं गया लेकिन मैं निकाल रहा हूं कि मान लीजिए बोलेगा अनकंज्यूम्ड HCl कितना है, तो आप बोलेंगे 1 मोल जो CaCO3 है इट कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो अनकंज्यूम्ड अमाउंट क्या आएगा, अनकंज्यूम्ड अमाउंट आएगा हमारे पास, हमें कितने गिवन है 2.7397 था ओरिजिनल अमाउंट, माइनस कर दिया 2, कितना आ गया 0.7397 मोल्स ऑफ HCl। क्या है ये अनकंज्यूम्ड HCl, क्या है ये अनकंज्यूम्ड HCl। आप चेक कीजिए पहले इक्वेशन में क्या आ रहा है, ठीक है, 1 मोल ऑफ CaCO3 कंज्यूम्स 2 मोल ऑफ HCl, ओके, कितना मोल है 1 ही है ना यहाँ पे, तो इतना अमाउंट दे रखा है, तो 2.7397 से क्या हुआ 2 मोल कंज्यूम हुआ, कितना बचा 0.7397 मोल्स HCl बच गया। आर यू श्योर अबाउट दैट, ठीक है। लिमिटिंग रीजनिंग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और अच्छे माइंड से सब करिएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ, वेरी गुड। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाता है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक क्या है, एट 1 एटमॉस्फेरिक एंड एट व्हाट एंड एट 273 केल्विन 1 मोल ऑफ मीथेन का कितना वॉल्यूम होता है 22.4, तो फाइंड द वॉल्यूम एट दिस एटमॉस्फेरिक एंड दिस टेम्परेचर। तो क्या करेंगे आप P1 V1 T1 जो STP पर इज इक्वल व्हाट P2 V2 बाय T2, क्लियर है। तो P1 की वैल्यू कितनी है 1 एटमॉस्फेरिक, B1 की वैल्यू 22.4 डिवाइड बाय हमारे पास कितना टेम्परेचर है 273, तो P1 V1 बाय T1 नया कितना है 1.5, वॉल्यूम पता नहीं है, टेम्परेचर हमें मालूम है 500 केल्विन, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 22.4 इंटू 500 डिवाइड बाय 273 इंटू 1.5, तो नया वॉल्यूम क्या आ गया, तो नया वॉल्यूम आ गया 27.35 लीटर। क्लियरली अंडरस्टूड। क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, अगर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक 273 पर 1 मोल अमोनिया है जिसका वॉल्यूम ये दे रखा है, तो बताइए 1.5 एटमॉस्फेरिक पर जब टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो उसको कितना वॉल्यूम होगा। तो आप सिंपल सा इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालिए, P1 V1 T1 ये क्या है STP कंडीशन और ये क्या होता है गिवन कंडीशन। क्लियरली अंडरस्टूड, श्योर अबाउट दैट, और उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। ओके।